So central problems of an economy. So initially, what is economic problem? We all know that we are having unlimited wants. Each human being has unlimited wants, and the resources to satisfy such wants are limited. And these resources, they have the alternative uses. फिर हमें क्या करना पड़ता है, हमें चॉइस करना पड़ता है कि कौन से रिसोर्स को अप्लाई करके कौन सी वांट पहले हमको सेटिस्फाई करनी है. सो देन वी हैव टू मेक अ चॉइस एंड प्रायोरिटाइज आवर वांट्स. सो कौन सी वांट हमें पहले सेटिस्फाई करनी है और कितना रिसोर्स उसमें यूज करना है और कितना रिसोर्स बाकी रखना है नेक्स्ट वांट के लिए. सो दिस इज व्हाट वी हैव टू डू, प्रायोरिटी रैंकिंग, और यू कैन से मेकिंग अ चॉइस. So economic problem is a problem of choice or problem of economical use of the scarce resources. तो scarce resources को किस तरह economically use करना है वो भी है, और it is a problem of choice also. Now what are the causes of economic problem? So let us understand them. तो firstly it is unlimited wants. हमको पता है कि बहुत सारी wants हमारी रहती ही है, एक के बाद एक want satisfy हुई नहीं कि दूसरी तो हाजिर है. It is in the series. So their wants are unlimited, and then the limited resources are there. जो भी resources हमारे पास है, टाइम होगा, मनी होगा, whatever. Generally want satisfy करने के लिए generally we consider the money resource only. So वो resource हमारे पास limited ही होता है, scarce ही होता है. So we are required to make a choice or give a priority to particular want which has to be satisfied in the first place, then next. इस तरह से priority हमें decide करनी है. So scarcity is a situation in which there is not enough resources to meet all the human wants. Scarcity क्या होती है कि हमारे पास उतने resources नहीं है जितने हमारे wants है. तो सारे ही wants को satisfy करने के लिए resources हमें कम पड़ रहे हैं, तब हम बोलते हैं कि there is a scarcity of resources. Then there are alternative uses of these resources also. तो particular resource हमारे पास, अगर हम जब example हमने लिया हुआ है already बहुत बार, कि if we are having 200 rupees in our pocket and we have n number of wants to satisfy. For example, आपको अगर आपके फ्रेंड्स को पार्टी देनी है, या आपको कोई बुक परचेज करना है, या आपको ऑटो से कहीं ना कहीं कन्वेंस करना है, आपको कम्यूटेशन करना है, तो मे बी यू आर हैविंग दीज 3 wants to be satisfied. तो आपको ये 3 काम करने हैं, बट आपके पॉकेट में 200 रुपीज़ है, एंड इन दैट केस maybe 1 or 2 wants only can be satisfied in that case. So you have to give the priority to particular want which needs the satisfaction at the foremost level. तो सबसे पहले कौन सी want को आपको satisfy करना है वो आपको देखना होगा, because there are alternative uses of those 200 rupees at that time. Then let us understand the central problems of an economy. तो किसी भी economy में कौन से problems central होते हैं या core में होते हैं, main problems कौन से किसी भी economy में. So whether the economy is rich or poor, whether it is developed or undeveloped or underdeveloped, so ये हर एक economy में यही problems होते हैं. So which are these problems? First is what to produce, second is how to produce, and third is for whom to produce. अब what to produce में कौन सा problem आ सकता है या क्या consider करना है? What to produce में क्या आपको consumer goods बनाने हैं या production goods बनाने हैं, या आपको कंज्यूमर ड्यूरेबल्स बनाने हैं या कंज्यूमर सेमी ड्यूरेबल्स बनाने हैं. तो वो कौन से गुड्स है जो आप प्रोड्यूस करना चाहते हो, दैट यू हैव टू थिंक कि व्हाट टू प्रोड्यूस. आपको रिच पीपल के लिए प्रोडक्शन करना है या पुअर पीपल के लिए प्रोडक्शन करना है, आपको यूथ के लिए प्रोडक्शन करना है या आपको एजेड पीपल के लिए प्रोडक्शन करना है, या आपको वर्किंग पॉपुलेशन के लिए प्रोडक्शन करना है, या जो घर पे बैठे आराम से आइडल लाइफ जी रहे उनके लिए प्रोडक्शन बनाना है. तो देयर आर एन नंबर ऑफ options with you and you can go for production of any product, but it is that you have to make a choice कि आपको कौन से चीज के लिए प्रोडक्शन करना है, किसके लिए प्रोडक्शन करना है. ओके, so what to produce you have to decide accordingly. You can decide to produce the guns etc for defense, or you can decide to produce bread and butter for the civilians, for the poor people. So this is for you to decide what to produce. So similarly आप ये सोच सकते हो कि हमें कंज्यूमर गुड्स को प्रोड्यूस करना है या कैपिटल गुड्स को प्रोड्यूस करना है. जैसे क्लॉथ है, शुगर है, व्हीट, घी, दीज आर कंज्यूमर गुड्स, क्योंकि ये कंज्यूम कर लेंगे हम. बट कैपिटल गुड्स अगर आप सोचते हो कि नहीं मुझे कंज्यूमर गुड्स नहीं बनाने, कैपिटल गुड्स बनाने, जैसे ट्रैक्टर्स है, मशीनरी है, ये सारे कैपिटल गुड्स है, या वॉशिंग मशीन्स है, टेलीविजन है, रेफ्रिजरेटर है, ये सारे कैपिटल गुड्स है या इलेक्ट्रॉनिक गुड्स है. सो विच गुड्स यू वांट टू प्रोड्यूस, यू हैव टू डिसाइड अकॉर्डिंगली.
देन हाउ टू प्रोड्यूस। एक बार आपने ये डिसीजन कर लिया कि आपको पर्टिकुलर प्रोडक्ट बनाना है, चलो आपने डिसाइड कर लिया कि आप कंज्यूमर गुड्स बनाओगे, आप व्हीट का आटा बनाओगे या वॉट एवर यू विल मेक सम ब्रेड एक्सेट्रा, तो जो भी आपने डिसाइड कर लिया वो आप कैसे बनाओगे, वेदर यू आर गोइंग टू यूज लेबर इंटेंसिव टेक्निक और मशीनरी या टेक्नोलॉजी ड्रिवन होगा आपका या कैपिटल इंटेंसिव होगा, वो आपको डिसाइड करना है। तो लेबर इंटेंसिव होगा तो आप ज़्यादा से ज़्यादा मैन पावर उसमें एम्प्लॉय करोगे, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को उसमें एम्प्लॉय करोगे, ताकि बहुत सारी जॉब अपॉर्चुनिटीज़ होंगी और बहुत सारे लोगों को जब इनकम मिलेगा तो नेचुरली डिमांड भी हमारी इकोनॉमी में बढ़ेगी, तो हमारी इकोनॉमी फ्लरिश होगी, प्रॉस्पर होगी। बट अगर आप सोचते हो कि नहीं, मुझे एम्प्लॉयज़ को नहीं रखना है, ह्यूमन पावर नहीं चाहिए, मुझे एनर्जी पावर चाहिए या टेक्नोलॉजी से मैं ये बनाना चाहता हूँ, सो देन इट विल बी कैपिटल इंटेंसिव, तो उसमें बहुत ज़्यादा पैसा लगा के, बहुत ज़्यादा अलग अलग मशीनरी लगा के आप प्रोडक्शन को बढ़ा सकते हो। इन दैट केस ऑल्सो प्रोडक्शन बढ़ेगा, बहुत सारा प्रोडक्शन होगा, तो वो पर्टिकुलर प्रोड्यूसर जो है वो ज़्यादा कमा सकता है। बट दोनों में फ़र्क है, लेबर इंटेंसिव एंड कैपिटल इंटेंसिव, दीज टू आर डिफरेंट, दे हैव डिफरेंट इफेक्ट्स ऑन द इकोनॉमी। टेक्निक्स ऑफ प्रोडक्शन अगर आप ज़्यादा यूज़ कर रहे हो तो प्रोडक्शन बढ़ेगा, जैसे टेक्नोलॉजी ड्रिवन है, कैपिटल इंटेंसिव है, तो प्रोडक्शन तो बहुत ज़्यादा बढ़ेगा, लार्ज स्केल प्रोडक्शन होगा। देन योर कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन विल रिड्यूस, देन द कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन रिड्यूस होने की वजह से प्रॉफिट मार्जिन बढ़ेगा प्रोड्यूसर का, ओके। बट एट द सेम टाइम वहाँ पे ज़्यादा लोगों को एम्प्लॉयमेंट नहीं मिल रही है, सो मे बी द डिमांड इन द इकोनॉमी मे नॉट इंक्रीज टू दैट एक्सटेंट, जितना प्रोडक्शन बढ़ा हुआ है, तो सप्लाई उसमें मोर हो सकता है और डिमांड कम हो सकती है। देन द थर्ड डिसीजन टू बी मेड इज फॉर whom टू प्रोड्यूस। जैसे मैंने कहा कि आप यूथ के लिए प्रोड्यूस करना चाहते हो या आप ओल्ड एज पीपल के लिए प्रोड्यूस करना चाहते हो या आप किसके लिए प्रोड्यूस करोगे एग्जैक्टली, सो यू हैव टू डिसाइड दैट, रिच के लिए कि पुअर के लिए। सो इन दैट केस सोशल जस्टिस इज टू बी प्रमोटेड इफ मोर एंड मोर गुड्स आर प्रोड्यूस फॉर पुअर। तो अगर आपको ऐसे करना कि नहीं, सोशल जस्टिस हमको देखना है या सोसाइटी बेस्ड, सोसाइटी एट लार्ज के लिए हम कुछ करना चाहते हैं, तो आप पुअर के लिए गुड्स बनाओगे। अदरवाइज इफ यू वांट टू हैव प्रेस्टिजियस गुड्स तो आप रिच पीपल के लिए गुड्स बना रहे हैं। सो इट इज डिपेंडिंग अपॉन यू, आप क्या करना चाहते हैं, दिस इज टोटली योर ओन चॉइस। नाउ देयर मे बी हिडन कॉस्ट ऑफ डूइंग इट। बाय प्रोड्यूसिंग गुड्स फॉर द पुअर द प्रॉफिट्स ऑफ द प्रोड्यूसर्स वुड रिमेन लो। जब वो पुअर के लिए, when you are making the goods for the poor, naturally profits for the producers will be low. प्रोड्यूसर्स का प्रॉफिट कम होगा क्योंकि आप पुअर के लिए बना रहे हो उस केस में, क्योंकि पुअर के लिए बना रहे हो मतलब आप कॉस्ट भी ज़्यादा नहीं रख सकते हो पर्टिकुलर प्रोडक्ट की, यू हैव टू कीप द कॉस्ट एज रीजनेबल प्राइस ओनली। सो येस, उनका जो प्रॉफिट्स कम होंगे और इन्वेस्टमेंट भी कम हो सकती है उस केस में। जब प्रॉफिट्स कम है तो नेचुरली वो ज़्यादा पैसा उसमें लगाएंगे नहीं क्योंकि रिटर्न्स कम हो रहे हैं। सो येस, इन्वेस्टमेंट भी कम होगी, फिर जीडीपी भी कम होगा इकोनॉमी में। So accordingly what you produce, how you produce and for whom you produce will have effect on the economy. So hence these are called as economic problems, क्योंकि हर एक डिसीजन की वजह से इकोनॉमी के ऊपर अच्छा या बुरा इफेक्ट होने वाला है, प्रभाव पड़ने वाला है। So hence these are called as problems of choice and you can say economic problems. Then let us understand the solutions of these central problems in different economies. तो अलग अलग इकोनॉमीज में इनके जो सॉल्यूशंस है वो अलग अलग होंगे। जैसे कौन सी इकोनॉमी हो सकती है, अलग अलग इकोनॉमी मतलब मार्केट इकोनॉमी हो सकती है या सेंट्रली प्लान्ड इकोनॉमी हो सकती है या मिक्स्ड इकोनॉमी हो सकती है। वी हैव ऑलरेडी सीन दिस डिफरेंस कि मार्केट इकोनॉमी कैसी है, जहाँ पे सप्लाई एंड डिमांड फोर्सेस विल प्ले द रोल, वहाँ पे प्राइस कौन डिसाइड करेगा, सप्लाई एंड डिमांड फोर्सेस। देन सेंट्रली प्लान्ड इकोनॉमी में क्या होता है कि अथॉरिटीज विल टेक ऑल डिसीजंस, सेंट्रल गवर्नमेंट या स्टेट गवर्नमेंट सारे डिसीजंस लेगा सेंट्रली प्लान्ड इकोनॉमी में, वहाँ पे मार्केट फोर्सेस ज़्यादा रोल प्ले नहीं करते हैं। एंड देन इज द मिक्स्ड इकोनॉमी जहाँ पे दोनों होगा कि मार्केट फोर्सेस भी अप्लाई हो जाएंगे एंड एज वेल एज द गवर्नमेंट विल ऑल्सो इंटरवीन इन केस ऑफ सर्टन एसेंशियल कमोडिटीज। तो सॉल्यूशंस कौन से होंगे इन डिफरेंट इकोनॉमीज में, तो अलग अलग इकोनॉमीज में उसका सॉल्यूशन अलग अलग हो सकता है। और वो कैसे फाइंड आउट करते हैं, वी हैव टू फाइंड आउट द प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी। तो हम लोग प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी देखेंगे अलग अलग इकोनॉमी में। तो वी विल ऑल्सो कंसिडर द प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी इन द मिक्स्ड इकोनॉमी, वी विल ऑल्सो कंसिडर इट इन द से मार्केट इकोनॉमी और सेंट्रली प्लान्ड इकोनॉमी ऑल्सो। तो तीनों ही इकोनॉमीज में हम लोग ये कंसिडर करेंगे कि कौन सी इकोनॉमी में कितना प्रोडक्शन की क्या पॉसिबिलिटी है एंड हाउ इट इज, वेदर इट इज प्रॉफिटेबल और नॉट।
वी विल स्टडी दैट अकॉर्डिंगली इन दिस चैप्टर। सो प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी कर्व जो होती है वो स्टडी करनी होती है हमें। सो व्हाट इज द प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी कर्व? It is a curve showing the alternative production possibilities of two goods when the given resources and techniques of production are there. तो इकोनॉमी में, किसी भी इकोनॉमी में आपको पहले से पता है कि क्या मेरे रिसोर्सेज है या क्या कौन सी टेक्नोलॉजी अवेलेबल है जो आप यूज़ करना चाहते हो। तो आपको पता है कि रिसोर्सेज कौन से है और टेक्नोलॉजी कौन सी है आपके पास। तो उसको ध्यान में रखते हुए आप प्रोडक्शन कर रहे हो और आप अपनी एक बाउंड्री बना रहे हो कि अच्छा ये इतना मुझे इस तरह से प्रोडक्शन करना है। You are drawing your own boundaries or making your own boundaries कि yes इतने में मेरा प्रोडक्शन इस तरह से हो जाएगा। These limits you know. So इसको प्रोडक्शन बाउंड्री या प्रोडक्शन फ्रंटियर भी कहते हैं, as it shows the maximum possible production with the given resources and given technology. तो उस पर्टिकुलर टेक्नोलॉजी में या उस पर्टिकुलर रिसोर्स में आप उतना लिमिट का या उतनी ही प्रोडक्शन कर सकते हो, नॉट बियॉन्ड दैट। तो जो भी गुड्स एंड सर्विसेज आप प्रोड्यूस करना चाहते हो, जो भी आपने डिसाइड किया हुआ है इन तीनों प्रॉब्लम्स में, विच वर द प्रॉब्लम्स, व्हाट टू प्रोड्यूस, हाउ टू प्रोड्यूस, फॉर होम टू प्रोड्यूस, आपने डिसाइड कर लिया है और अब आप अप्लाई करना चाहते हो किसी एक इकोनॉमी में जहाँ पे आपको रिसोर्सेज एंड टेक्नोलॉजी आर गिवन, मीन्स फिक्स्ड। आपने फिक्स कर लिया अपने लिए कि ये रिसोर्सेज है और ये टेक्नोलॉजी है, तो उसको अप्लाई करके आप कितना प्रोडक्शन कर सकते हैं वो भी फिक्स ही हो जाएगा ऑब्वियसली, क्योंकि टेक्नोलॉजी और रिसोर्सेज अनलिमिटेड नहीं है, वो भी कहीं ना कहीं लिमिटेड है। तो नेचुरली आपका प्रोडक्शन भी एक लिमिट हो जाएगा जो आपको पता चल जाएगा व्हेन द रिसोर्सेज आर गिवन एंड टेक्नोलॉजी इज आल्सो गिवन। फिर वो आप एक ग्राफ पेपर पे प्लॉट करोगे ऑब्वियसली बाय मेकिंग, फर्स्टली यू विल मेक अ शेड्यूल अपॉन दैट कि इतना इनकम होगा या इतना इन्वेस्टमेंट होगा, इतनी रिसोर्सेज होंगी, तब मेरा इतना प्रोडक्शन होने वाला है। सो इस तरह से 2 या 4 ऑब्जर्वेशंस करके हम या ज़्यादा ऑब्जर्वेशंस करके हम ये पर्टिकुलर शेड्यूल बनाएंगे कि एट दिस लेवल दिस इज द अचीवमेंट ऑफ प्रोडक्शन, या एट दिस पर्टिकुलर लेवल द प्रोडक्शन हैज इंक्रीज और डिक्रीज वॉट एवर। सो इस तरह से आप एक शेड्यूल बनाओगे, टैबुलेट करोगे इस ऑब्जर्वेशन को या डाटा को, एंड वो जो टैबुलेटेड डाटा है यू विल देन पुट इट ऑन अ ग्राफ पेपर। अब उसका एक ग्राफ बनाओगे, एक कर्व बनाओगे, दैट विल बी अ डायग्रामेटिक प्रेजेंटेशन ऑफ द इंफॉर्मेशन दैट यू हैव टैबुलेटेड। तो उसको बोलेंगे ट्रांसफॉर्मेशन लाइन या ट्रांसफॉर्मेशन कर्व। उसमें से जो लाइन बना सकते हो पॉइंट्स को प्लॉट करके ग्राफ पेपर पे, वो एक कर्व की तरह या लाइन की तरह दिखेगा। सो दैट पर्टिकुलर लाइन इज कॉल्ड एज ट्रांसफॉर्मेशन लाइन और ट्रांसफॉर्मेशन कर्व। It will indicate that if more of goods X is to be produced, then the factors of production will have to be withdrawn from the production of goods Y. क्योंकि ऑप्शन है आपके पास कौन सा गुड्स को प्रोड्यूस करना है, वेदर यू वांट टू मेक द गुड्स फॉर रिच पीपल और फॉर पुअर पीपल। अगर इफ वी आर टेकिंग रिच पीपल का गुड्स X है एंड पुअर पीपल के लिए गुड्स Y है, तो ये 2 ऑप्शन है हमारे पास, वेदर यू शुड प्रोड्यूस गुड्स X और गुड्स Y। तो आपके पास जो भी अवेलेबल रिसोर्स है, से फंड्स है, फंड्स इज योर रिसोर्स इन दिस केस। सो आपके पास 1 करोड़ रुपीज़ है, तो 1 करोड़ रुपीज़ से आप X कितना बना पाते हो या Y कितना बना पाते हो, आपको वो देखना है। अगर आप कॉम्बिनेशन भी बनाना चाहते हो तो X का कितना होगा उसमें और Y का कितना शेयर होगा उसमें, वो देखेंगे। शेयर मीन्स Y कितना बनाओगे और X कितना बनाओगे, हाउ मच ऑफ द गुड्स टू बी मेड फॉर X इन केस ऑफ X गुड्स एंड हाउ मच ऑफ द गुड्स टू बी प्रोड्यूस्ड, हाउ मच यूनिट्स टू बी प्रोड्यूस्ड ऑफ Y गुड्स। तो इस तरह से ये कॉम्बिनेशन होगा और ये ग्राफ पेपर पे हम प्लॉट करेंगे।